छांदोग्योपनिषद प्राचीन ज्ञान का अनुपम रत्न हमें जागने का आह्वान करता है। तत्वम असि, तुम वही हो। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? One ought to meditate upon the syllable Om. The Udgita, because people sing beginning with Om. ओम यह अक्षर ही उद्गीत है, इसकी ही उपासना करनी चाहिए। ओम ऐसा ही उद्गान करता है, उसकी ही व्याख्या की जाती है। The essence of all these beings is the earth. The essence of the earth is water. The essence of water is vegetation. The essence of vegetation is man. The essence of man is speech. The essence of speech is Rik. The essence of Rik is Saman. The essence of Saman is Udgita. इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियां हैं, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाक है, वाक का रस ऋक है, ऋक का रस साम है और साम का रस उद्गीत है। The Chandogya Upanishad enumerates primary sources of divine inspiration, deepest subjective consciousness and the process for transformation of the individual life to the universal life. The syllable Om, which is called Udgita, is the quintessence, heart of the essences, the supreme, deserving of the highest place and the eighth. यह जो उद्गीत है, यह संपूर्ण रसों में रसतम, उत्कृष्ट, परम का प्रतीक होने योग्य और पृथ्वी आदि रसों में आठवां है। Which one is Rik? Which one is Saman? Which one is Udgita? This is being considered now. अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है, कौन कौन सा साम है और कौन कौन सा उद्गीत है। Speech alone is ऋक, prana is saman, the syllable Om is Udgita. Speech and prana, the sources of Rik and Saman taken together form a couple. वाक ही ऋक है, प्राण साम है और यह क्रम उद्गीत है। ये जो ऋक और साम, वाक और प्राण हैं, वे परस्पर युग्म हैं। आत्मा और अनंत का मिलन, दुख का लय। ओम वाणी श्वा। This couple is joined together in the syllable Om. Whenever, verily, a couple is joined together, each fulfills the desire of the other. यही यह मिथुन ओम इस क्रम में संश्लिष्ट होता है। जिस समय मिथुन परस्पर मिलते हैं, उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त कराने वाले होते हैं। He who meditates upon this syllable as Udgita, knowing it thus, as the fulfiller, verily becomes a fulfiller of all the desirable ends.
जो विद्वान इस प्रकार इस उद्गीत रूप अक्षर की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। That verily is the syllable of assent, for whenever one assents to a thing, one says only Om. Assent alone is prosperity. He who meditates upon this syllable as Udgita, knowing it thus, as endowed with the quality of prosperity, verily becomes one who increases all the desirable ends. वह यह ओंकार ही अनुज्ञा अक्षर है। मनुष्य किसी को कुछ अनुमति देता है तो ऐसा ही कहता है। यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस उद्गीत अक्षर की उपासना करता है वह निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं को समृद्ध करने वाला होता है। With this does the threefold knowledge proceed, because with Om does one cause to listen, with Om does one recite, with Om does one sing aloud. For the worship of this syllable, with its own greatness and essence, the Vedic rites are performed. उस अक्षर से ही यह त्रय विद्या प्रवृत्त होती है। ओम ऐसा कहकर ही अध्वर्यु आश्रवण कर्म करता है, ओम ऐसा कहकर ही होता शास्त्र करता है, तथा ओम ऐसा कहकर ही उद्गाता उद्गान करता है। इस अक्षर की पूजा के लिए ही संपूर्ण वैदिक कर्म हैं, तथा इसी की महिमा और रस के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं। He who knows it thus and he who does not know both perform actions with it. For knowledge and ignorance are different in their results. Whatever is performed with knowledge, faith and meditation becomes more effective. Up to this truly is the explanation of the greatness of this syllable Om. जो इस अक्षर को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं, किंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न हैं। जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है। इस प्रकार निश्चय ही यह सब इस अक्षर की ही व्याख्या है। कृष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी से यहां मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला, नियम से यज्ञ करने वाला।